Greetings, children. Today I continue with the chapter Indigo from your book Flamingo. Before I continue with the chapter, I just want to summarize whatever we did. We saw that Gandhi attended the annual convention of Indian Congress in 1916 December, okay? And there 2,301 delegates came, and there a poor skinny peasant approached Gandhi to come to Champaran, and the poor skinny peasant was Rajkumar Shukla. He was illiterate but resolute. He wanted Gandhiji to do something about the problem or injustice of the landlord system in Bihar. After that, we saw that Gandhi at last said Rajkumar Shukla that okay, he accompany him immediately after his Calcutta visit. After that, they both went to Patna, okay, and there in Rajendra Prasad house, who was a lawyer of Patna. Later, he became the president of Congress. That is, Rajendra Prasad became the president of Congress Party and India. Rajendra Prasad couldn't be contacted since he was out of town. So, after that, for more information, Gandhi went to Muzaffarpur. There, he just sent a telegram to Professor J.B. Kriplani. Okay. After that, Kriplani and his students received Gandhiji at station. Gandhiji accommodated at a government school teacher, that is Professor Malkani, and due to the fear of the Britishers, very few would show such unusual gestures. After that, peasants came rushing to Muzaffarpur when they heard about the Gandhi. And then Gandhiji briefly asked lawyers about the case, and then the lawyer mentioned about what they charged, and then Gandhi chided them for collecting high fees. After that, Gandhiji decided, or we can say that concluded, that he has to change line of action. First, fear-stricken peasant got little help from court. That is, no help from court. So, first of all, stop going to court. After that, he decided that peasants needed to be freed from fear. Then the problem is that a large estate owned by Englishmen, that is arable land, okay, owned by Englishmen, and that is the Indian peasants who compelled to grow indigo on 15% of the land, and then they compelled, that is the landlord compelled all the tenants to surrender the entire indigo harvest as rent, and this was done by a long-term contract. But now the problem is that landlord charged compensation for releasing from this long-term contract, that is from releasing 15% arrangement. Some peasants signed willingly to this agreement. Some engaged lawyers. Soon, news of synthetic indigo reached to the peasants, and then the peasants demanded their money back. At this time, Gandhiji arrived at Champaran. He asked Secretary of British Landlord Association for details, but he refused as he considered Gandhiji as an outsider. Then Gandhi claimed that he was not an outsider. After that, the commission did not cooperate and even tried to
bullying Gandhiji. After that, he went Trihut, and there he got advised to leave Trihut. After that, instead of leaving Trihut, Gandhiji left for Motihari with several lawyers, and there many peasants greeted at the station to Gandhi, and they welcomed Gandhi. Even Gandhi started operating from a house his investigations. After that, he decided to visit a nearby village as he heard that some maltreated peasant was there in nearby village. So Gandhiji decided to go and see him. But in the next morning, when he was moving there on the back of an elephant, suddenly a police superintendent messenger overtook and driven back to the town in a carriage. As he gave him a letter, okay, that is the order, official notice ordering that Gandhiji to leave Champaran. Gandhiji signed it, but wrote that he would disobey the order. Okay, he would disobey the order, and then he got summoned to appear in court the next day. After that, Gandhiji wrote a telegram to Rajendra Prasad to rush to Bihar with influential friends. Okay, and even he sent instruction to ashram and a full report to the viceroy. After that, in Motihari, we have to see what happened there. Okay, let us start. Morning found the town of Motihari black with peasants. मीन्स यहाँ तक हमने देखा कि गांधी जी को सम्मन आ गया, ठीक है, कि कोर्ट में पेश होना है, और उन्होंने पूरी रात जाकर क्या किया, टेलीग्राम लिखा था राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स ले आना साथ में, और आश्रम वाश्राय सबको इंस्ट्रक्शंस, आश्रम इंस्ट्रक्शन और वायसराय को रिपोर्ट सेंड कर दी. अब होता क्या है, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, मतलब अगली सुबह थी, मोतिहारी का जो टाउन था वहाँ पीजेंट्स कवर कर लिया उन्होंने, ठीक है, पूरा टाउन भर दिया उन्होंने, ठीक है, इतनी भीड़ होगी, क्राउड इतना हो गया था. दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. भाई इन पीजेंट्स को ना कोई आइडिया नहीं था गांधी जी कौन है, इतने फेमस भी नहीं थे उस टाइम. इवन साउथ अफ्रीका का जो रिकॉर्ड था उसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानते थे पीजेंट्स. उन्हें सिर्फ ये पता था कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहते हैं उनकी इस परेशानी में, ठीक है, लेकिन अब जो अथॉरिटी है उन्हें परेशान कर रहे हैं, ठीक है. देयर स्पॉन्टेनियसली मीन्स कम नेचुरली, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स शो करना या मार्च करना, ठीक है. कल ही समन आया था और आज ही सारे के सारे वहाँ पर जो पीजेंट्स हैं वो इकट्ठे हो गए इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस. वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. ये जो बात है बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इतने हज़ारों में लोग आ गए, ठीक है, सपोर्ट दिखाने गांधी जी को, गांधी जी के लिए. और ये थी असली शुरुआत, लिबरेशन, फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश. ये पहली, ये लगा लो, आज़ादी थी उनके ब्रिटिशर के डर से, डर के खिलाफ उनकी ये पहली आज़ादी थी. द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जीज कॉपरेशन. इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें काबू में नहीं कर पा रहे थे भीड़ को.
ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्हें गांधी जी का कॉपरेशन चाहिए था किस चीज़ में, कंट्रोल करने में, क्राउड को कंट्रोल करने में उन्हें गांधी जी की हेल्प चाहिए थी। ठीक है, तो इसके बाद ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, मतलब गांधी जी ने बिल्कुल पोलाइटली और फ्रेंडली से वो जो क्राउड है उसको मैनेज कर दिया। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, यहाँ पर क्या कहा है बेटा कि ही वॉज गिविंग दैम मीन्स ब्रिटिशर्स को गांधी जी ने एक सॉलिड प्रूफ दिया दैट देयर माइट मीन्स, ये बताने के लिए देयर माइट मीन्स पावर। ठीक है, हिथरटो मीन्स अंटिल नाउ, ड्रेड मीन्स फियर्ड एंड अनक्वेश्चनड, सॉलिड प्रूफ दिया कि अब तक तुम्हारी इस पावर को कोई भी मतलब कि अनक्वेश्चनली नहीं फॉलो करेगा। ठीक है, मीन्स कि जो अब तक है ना, अंटिल नाउ, अब तक जो ये लोग डरे हुए थे ना, तुम्हारी ये जो फैला रखी थी पावर, ठीक है, जो तुमने इतना दबा रखा है लोगों को, इतना डर फैला रखा है लोगों को, और जिसमें मतलब कि अनक्वेश्चन कर रखा है, कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी इंडियन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियन, लेकिन अब क्या है, उसे चैलेंज किया जाएगा इंडियंस के द्वारा कि जो तुम्हारी जो पावर है, जो अब तक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते थे, डरते थे लोग, अब वो इंडियंस अब चैलेंज तुम्हें कर सकते हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड होता है परप्लेक्स्ड, ठीक है, मीन्स टू कॉज समवन टू बी कंप्लीटली अनेबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन समथिंग, गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे इस सिचुएशन में। द प्रोसिक्यूटर मीन्स गवर्नमेंट्स एडवोकेट, ठीक है, मीन्स प्रोसिक्यूटर कौन है, जो गवर्नमेंट की तरफ से, या कह सकते गवर्नमेंट लॉयर, ठीक है, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, जो गवर्नमेंट एडवोकेट है उसने क्या कहा कि भी जो आज की जो ट्रायल है, हियरिंग होनी है, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, ये बात वो जज को बोलता है। अपेरेंटली मीन्स एविडेंटली द अथॉरिटी विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो पहले अपने सुपीरियर से बात करेगा फिर से ट्रायल करवाएगा। ठीक है, मीन्स ये डर उनके मन में आ गया था। तो जो गांधी जी हैं उन्होंने इस डिले के लिए प्रोटेस्ट किया, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले मीन्स अपोज्ड किया कि डिले मत करो, आज ही सारी हियरिंग होने दो। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी मीन्स एडवोकेटिंग गिल्टी, कि हाँ भाई मैं अपनी गलती मानता हूँ। ठीक है, ही वॉज इन्वॉल्व, हाँ भाई वो उसकी गलती है, ही वॉज इन्वॉल्व। ही टोल्ड द कोर्ट, गांधी जी ने कोर्ट को क्या बताया कि वो इन्वॉल्व था किस चीज़ में, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, मेरे दिमाग में डिस्प्यूट चल रहा था, ये चीज़ उसने बोला। एक तरफ तो ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, एक तरफ तो वो अपने बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था लोगों के आगे एज अ लॉ ब्रेकर, ठीक है, दूसरी तरफ टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम, दूसरी तरफ टू डू, रेंडर मीन्स टू डू द ह्यूमैनिटेरियन, वो यहाँ क्या करने आया है, इंसानियत और नेशनल सर्विस करने आया है, इंसानों की सेवा करने आया है या नेशनल सर्विस करने आया है, जिसके लिए वो यहाँ पर आया है। बेटा जी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में डेफिनेटली आता है पेपर में, तो इसको जरूर कर लेना। व्हाट वाज द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, ओके, एक तरफ सेट एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाह रहा, मीन्स कि एक एग्जाम्पल बैड एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाह रहा एज अ लॉ ब्रेकर, दूसरी तरफ वो ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करने आया है, ठीक है, तो इसलिए ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, इसीलिए उसने डिसरिगार्ड किया इस ऑर्डर को कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेगा। नॉट फॉर व्हाट, वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट, इसलिए नहीं कि उसमें रिस्पेक्ट, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है फॉर लॉफुल अथॉरिटी के लिए, मीन्स अथॉरिटी के लिए उसके मन में कोई कमी है रिस्पेक्ट की, ऐसा नहीं है, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, दैट इज द वॉइस ऑफ कंसाइंस, दैट इज जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो इनर सेल्फ की जो साउंड है, ठीक है, मेरे को उसकी बात माननी थी, ठीक है,
मीन्स कि मुझे यहाँ पर मतलब क्या है, ओबीडियंस का मतलब किसी की बात मानना, ठीक है। बात मानी किस चीज़ की, किसकी, अपनी आत्मा की, जो हायर लो है, इन सबसे ऊंचा है, ठीक है। मीन्स हमारी जो लाइफ की, इंसानियत की, उससे भी बड़ी जो लॉ है वो क्या है, लॉ, कोर्ट के लॉ से भी बड़ा लॉ क्या है, द वॉइस ऑफ कंसाइंस, अपने मन की आवाज़ सुनी मैंने। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट का मतलब समझ गए हो, ठीक है। कि गांधी जी ने कहा कि एक तरफ तो मेरे माइंड में ये चल रहा था, दूसरी तरफ मेरे को ये काम करना था, पर मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे लैक ऑफ रिस्पेक्ट दिखाना है अथॉरिटी को, ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। ओके, ये मैं मानता हूँ मेरी गलती है, और इस चीज़ को वो एडमिट करता है कोर्ट में। ही आज द पेनल्टी ड्यू, मेरे लिए जो सज़ा है, जो मैंने क्राइम किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hours रिसेस। जो मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं कि वो रिजल्ट अनाउंस कर देंगे 2 घंटे बाद, डिलीवर करेंगे सेंटेंस रिजल्ट आफ्टर 2 hours रिसेस, एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल, कि वो प्रेजेंट अभी के लिए क्या करो, बेल ले लो 120 मिनट्स के लिए। गांधी जी इस बात के लिए रेफ्यूज्ड कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुझे 2 घंटे के लिए जेल में डाल दो, बट मैं कोई बेल नहीं लूँगा। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और आखिर में जो जज है वो उन्हें विदाउट बेल रिलीज कर देते हैं। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंटेड, रिकन्वेंट मीन्स स्टार्टेड अगेन, the judge said he would not deliver the judgment for several days. मीन्स रिसेस ख़त्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट होता है, तो जज कहते हैं कि वो कई दिनों तक अब जजमेंट नहीं दे सकते। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, कि ठीक है, गांधी जी को कहा कि तुम आज़ाद हो, तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बिल्कुल आज़ादी से घूम सकते हो। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बापू, मौलाना मुजहर हक and several other prominent lawyers had arrived from बिहार। ये कहाँ से आए हुए, ये सब बिहार से आ गए थे, ये सब कोर्ट के बाद, ठीक है। ये सब गांधी जी के साथ मीटिंग में बैठते हैं, ठीक है। ये जो तीनों लॉयर्स हैं ना बेटा, ये बहुत बड़े, ये लगा लो मेन लॉयर्स थे, ठीक है। दे कन्फर्म्ड विद गांधी, दे डिस्कस विद गांधी कि वो क्या करेंगे आगे, वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन। गांधी आस्क्ड, गांधी जी पूछते हैं कि भी अगर मुझे जेल हो जाती तो तुम क्या करते हैं। वाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, अब क्यों द सीनियर लॉयर भी, क्यों ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो वो दे हैड कम टू एडवाइस, वो एडवाइस करने आते हैं, एंड हेल्प हिम, और मदद करते हैं। मीन्स क्यों ये सारे लॉयर्स आए हैं, ये क्यों आए हैं ये सारे लॉयर्स, आपको एडवाइस करने आए हैं, हेल्प करने आए हैं। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड नो बडी टू एडवाइस। अब वो कहते हैं कि अगर मतलब कि ही वेंट टू जेल, अगर गांधी जी को जेल हो जाती तो कौन आता उनको एडवाइस करने, कोई भी नहीं आता, कोई आने भी नहीं देते हुए, एंड दे वुड गो होम, और वो घर चले जाते। अब ये बात सुनने के बाद, जब गांधी जी ने ये बात बोली ना, ठीक है, तो उसके बाद जो लॉयर्स हैं वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी कहते हैं कि भी मुझे पता है कि भी अगर ऐसा कुछ हो जाता तो तुम लोग धीरे धीरे केस ख़त्म हो जाता और तुम अपने घर चले जाते, लेकिन जो इनजस्टिस हो रही है शेयर क्रॉपर्स के साथ, उनका क्या होता। इसका आंसर गांधी जी से मांगते, वो लॉयर से मांगते हैं गांधी जी। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, अब जो लॉयर्स हैं वो सारे विड्रू करते हैं, मीन्स कि जो कंसल्टेशन है उसे विड्रू कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। जो राजेंद्र प्रसाद है वो पूरी गांधी जी के साथ जो मीटिंग होती है, बाद में जो मीटिंग होती है, उसकी अपशॉट देता है। अपशॉट क्या होता है, कंक्लूजन देता है, जिस्ट देता है, ठीक है, उनकी कंसल्टेशन से। जो राजेंद्र प्रसाद फाइनल कंक्लूजन देते हैं अपने डिस्कशन का। दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ, वो बताते हैं
कि हम सब ने ये सोचा आपस में दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। मतलब वो सोचते हैं कि गांधी जो है, जो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, ठीक है, जो इस इलाके को भी नहीं जानते थे, वो फार्मर्स के लिए जेल जाने के लिए रेडी हैं। और वो दूसरे हाथ में वो सारे लॉयर्स कि जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना, मीन्स कि वो चंपारण में नेबर है, पड़ोस में रहते हैं, चाहे कोई वहीं रहता है। पर देखो अब यहाँ आगे यही बात बोली गई है, दे थॉट अमंग्स देमसेल्फ दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन। भी स्ट्रेंजर है और जेल में जाने को रेडी है फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स। किसके लिए? इन पीजेंट्स के लिए। इफ दे, अगर वे मीन्स लॉयर्स ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट मीन्स आसपास के साथ में रहने वाले, जैसे चंपारण के साथ में रहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, और साथ में मतलब वो ना कि सिर्फ पड़ोसी होते हुए भी, बट वो इंसान जो क्लेम करते हैं कि हमने इन पीजेंट्स के लिए काम किया है, इनकी लड़ाई की है, केस की लेकर गए हैं, शुड गो होम, कि अगर हम सब घर चले गए तो इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन। ये बहुत शर्मिंदगी मीन्स शेमफुल वाला डिजर्शन होता है किसी कॉज को, मीन्स द एक्शन ऑफ डिजर्टिंग अ कॉज। मतलब बहुत शर्मिंदगी वाली बात है ये कि हम घर चले जाएं, मीन्स गिविंग अप द कंपनी। ये बहुत शर्म की बात है, ये बात बोली गई है। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम, गांधी जी के पास गए, दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो गांधी जी ने यहाँ पर सबको मोटिवेट कर डाला। पहले राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने फ्रीडम में इंडिया का साथ दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, हमें ये बात होती है कि लीडरशिप होती क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है। सिर्फ आपके एक अपने विज़न से आप किसी को भी मोटिवेट कर दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने क्या किया, सबको मोटिवेट कर दिया। तो यहाँ पर जो बोलते हैं गांधी जी, द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, कि भाई आज ये बात सुनकर मैं श्योर हूँ कि ये जो बैटल है चंपारण का, ये हम जीत गए हैं। देन ही टुक अ piece of paper and divided the group into pair and put down the order in which each pair was to court arrest। वो एक सिंपल एक पेपर उठाते हैं और उसे पूरा मैप बना देते हैं कि कहाँ पर कौन कौन सी टीम कैसे अरेस्ट होगी, ठीक है, कि हम सब के लिए एक प्लान बना लेते हैं कि हम सब ऐसे ऐसे अरेस्ट होने जाएंगे। Several days later, Gandhiji received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गांधी है, कुछ समय बाद उन्हें एक नोटिस आता है मैजिस्ट्रेट से कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है चंपारण के, उन्होंने कह दिया है मैजिस्ट्रेट को कि हम ये जो गांधी जी पर जो केस किया था ना, उसको ड्रॉप करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। जो नॉर्मल सिविल सिटीज़न है, उनकी डिसओबीडियंस मीन्स पीसफुली जो लड़ाई थी, वो पहली बार मीन्स ट्राइम्ड का मतलब होता है गॉट विक्ट्री, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये जीत हासिल हुई है इन्हें, ठीक है। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी into the grievance of the farmers। फार फ्लंग मीन्स रिमोट, दूर दूर, या कह सकते हैं यहाँ पर लंबी चौड़ी और गहरी इंक्वायरी के लिए बैठ गए। into the grievance मीन्स जो कंप्लेंट्स थी, जो दुख दर्द थे, जो परेशानियाँ थी, उन सब के बारे में इंक्वायरी करने बैठ गए। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 peasants were written down। डिपोजिशन मीन्स फॉर्मल यूजली रिटन स्टेटमेंट, मीन्स वो फार्मर्स में जो लिखित
में प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, एविडेंस कह सकते हैं आप, ठीक है। 10,000 वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड, और नोट्स भी उन्होंने बना दिए ऑन अदर एविडेंस, दूसरे एविडेंस पर बेस्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्होंने कलेक्टेड कर लिए थे। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, मीन्स कि बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, डर फैल गया, क्यूवेट कांपने लग गए, ठीक है। ये जो इन्वेस्टिगेटर्स, ये जो तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, इससे। एंड द वीमेंट मीन्स वायलेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, मीन्स स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होने लगा, मीन्स लैंडलॉर्ड इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करने लगे कि ये गलत हो रहा है, ठीक है। मीन्स पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी जी ने क्या किया, पूरा तख्ता ही पलट दिया। पहले क्या, कौन डर रहा था, फार्मर्स डर रहे थे, और अब कौन डर रहा है, लैंडलॉर्ड्स डर रहे हैं, ठीक है। अब जून में क्या होता है, गांधी इन जून गांधी वो सम्मन्ड, मीन्स उन्हें अपॉइंट किया गया कि वो मिले सर एडवर्ड गेट से, टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। Before he went, he met leading association and again laid detailed plan for civil disobedience if he should not return। अपने एसोसिएट्स, अपने लीडर, प्रोमिनेंट ये जो लॉयर्स हैं, इनसे मिलकर एक प्लान बना लिया था, सारा ऑर्गेनाइज कर लिया था कि सपोज़ अगर वो नहीं आते हैं वापस, अगर वो रिटर्न नहीं होते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो क्या करना है, ठीक है। मीन्स या तो कोर्ट अरेस्ट हो जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, मीन्स लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। गांधी जी के साथ है ना बेटा 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यू हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जो कि ये रिजल्ट आया, एक ऑर्डर दिया कि एक ऑफिशियल कमिश्नर बैठेगी कि जो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन को देखेगी। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, ऑफिशियल कमिश्नर एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। कौन कौन थे इस मीटिंग में? गवर्नमेंट कमीशन कंसिस्टेड कौन है? लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। और सिर्फ गांधी जी अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि पीजेंट्स के लिए, हक के लिए बोल रहे थे। आगे देखो, गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर द सेवरल शॉर्टर विजिट्स। इस कमीशन बनने के बाद जो गांधी जी हैं उन्होंने लगातार 7 महीने विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रहे, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। और उसके बाद क्या होता है कि छोटे छोटे विजिट करने लगे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली मीन्स नॉट सीरियसली ऑन द entreaty means request of an unlettered peasants in the expectations that it would last for a few days occupied almost a year of Gandhiji's life। मतलब होता क्या है, जो गांधी जी विजिट करते हैं, एंट्रीटी होता है सिर्फ कोई रिक्वेस्ट पर, ठीक है। जो इलिटरेट, अनलेटर्ड मीन्स इलिटरेट, ठीक है। इलिटरेट जो पीजेंट होते हैं, पीजेंट्स हैं, उनके कहने पर आ जाते हैं कुछ समय के लिए बस, ठीक है। पर वो जो विजिट था वो पूरा साल खा जाते हैं गांधी जी की लाइफ का, ठीक है। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, कलेक्टेड होते हैं जो ऑफिशियल इंक्वायरी है, और जो दूसरे लॉयर्स जो सेटअप करते हैं वो क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, मीन्स बहुत ज़्यादा क्रशिंग, बहुत ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे हो जाते हैं अगेंस्ट द बिग प्लांटर के खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, जब उन्होंने ये सब देखा वो मान जाते हैं। इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स, अब नियम ये कहता है कि अब क्या उन्हें रिफंड करना पड़ेगा, किसको? टू द पीजेंट्स को। बट हाउ मच मस्ट वी पे, कितना पे करना है? दे आस्क्ड गांधी, और ये चीज़ उन्होंने गांधी जी से पूछी। क्यों पूछते हैं कि भी कितना पैसा हम वापस करें, ठीक है। अभी तुम्हारे एविडेंस से पता लग गया है हमें, ठीक है। और रूल ये कहता है कि हमें रिफंड करना है, बट कितना? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ, कि गांधी जी तो पूरे पैसे का डिमांड करेंगे, विच दे हैड इलीगली एंड डिसिटफुली, धोखे से
इलीगली तरीके से लिया है। एक्सट्रॉटेड मीन्स टेकन बाय फोर्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, फार्मर्स से लिया है, ठीक है। तो कमिश्नर तो ये सोच कर बैठे थे कि गांधी जी तो पूरा का पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो हम लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाकर इलीगली तरीके से और फोर्सफुली छीना था। ही आस्क्ड ओनली 50%, और गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ 50% का रिफंड मांगा, 50% पैसा वापस मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट, एडमेंट मीन्स स्टबॉर्न, मीन्स रेफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड, दैट इज़ जो 50% उन्होंने बोला मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो वो ये बोलते हुए ऐसे लग रहे थे कि वो इस बात पर डटे रहेंगे, इससे कम नहीं मानेंगे। राइट्स रेवरेंड जे.जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। ये जो बात है, ये बात किसने कही थी कि ये एडमेंट रहेंगे, गांधी जी इस बात पर डटे रहेंगे। ये एक ब्रिटिश मिशनरी, मिशनरी कौन होते हैं बेटा? जो दूसरे देश में दूसरी जगह पर जाकर अपने कल्चर के बारे में लोगों को लिटरेट करते हैं, ठीक है, उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे कल्चर या हमारे रिलीजन का पार्ट बन जाओ। तो ये जो ब्रिटिश मिशनरी थे जे.जेड हॉज, ठीक है, इन्होंने ये एपिसोड बहुत ज़्यादा क्लोजली देखा था, तो यहाँ पर उसके कमेंट्स हमारे ऑथर बता रहे हैं। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव था प्लांटर का, लैंडलॉर्ड्स का, उन्होंने ना इस बात के लिए रेफ्यूज़ कर दिया, किस बात के लिए? 50% देने के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 25% रिफंड कर सकते हैं बस, क्योंकि उन्हें ये था कि ये 50 पर अड़े रहेंगे गांधी जी, ठीक है। उन्होंने मतलब अपने मन में ये बात सोची थी कि उन्हें रास्ता नहीं देंगे, नॉट गिव वे, ठीक है। उन्हें पता था गांधी जी ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी क्या है, उसने 50% को मना कर दिया, 25% मान लिया। एंड टू हिज अमेंजमेंट, और होता क्या है, जैसे मिस्टर गांधी ने 50% बोला तो उन्होंने मना कर दिया था, और फिर जैसे उन्होंने 25% बोला ना बेटा, तो जो मिस्टर गांधी है टुक हिम एट हिज वर्ड, उसी के वर्ड मान ले लिए और कहा कि ओके फाइन 25% ही कर दो, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और यहाँ क्या है, इस तरीके से वो जो लॉन्ग टर्म डेडलॉक चल रहा था ना, वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों किया, 25 में क्यों मान गए, वो 50 पर भी एक बार और क्यों नहीं बोले। तो दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनोनिमसली बाय द कमीशन। ये जो सेटलमेंट थी 25% की, ये सारे जो कमीशन के मेंबर्स ने वोट कर दिया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, कि ये कहते हैं कि ये जो अमाउंट है ना रिफंड का 25%, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये फोर्स किए गए हैं टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि माननी पड़ी कि उन्हें वो पैसा रिफंड करें, मीन्स रिफंड, सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, उन्हें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, बल्कि उन सबके उसके साथ विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज होता है ऑनर, रिस्पेक्ट, उन्हें झुकना पड़ा फार्मर्स के आगे, यही चाहिए था गांधी जी को। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, ये पीजेंट्स की बात है, ठीक है, मीन्स पैसा और प्रेस्टीज तो सरेंडर करनी पड़ी, लेकिन साथ में द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ, ऐसे बिहेव करते थे, लॉ से भी ऊपर है। Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब peasants ने ये देख लिया था कि अपने ऊपर ये दिखने लग गया था कि हाँ मेरा भी कोई राइट है और मैं भी डिफेंड कर सकता हूँ, और यहाँ पर क्या सीखा, करेज, हिम्मत सीखी यहाँ पर। इवेंट्स जस्टिफाइज गांधी जी इस पोजीशन, कुछ ऐसे इवेंट्स होती हैं जिससे गांधी जी की जो पोजीशन है उसको जस्टिफाई मिला कि उनका ये जो डिसीजन था ये क्यों सही था। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडेड गेव अप देयर एस्टेट, जो ले रखा था ना
एस्टेट वो वापस कर दिया, विच रिवर्टेड गिवन बैक, रिवर्टेड मीन्स गिवन बैक टू द पीजेंट्स, उन्होंने पीजेंट्स को वापस कर दिया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर, और ये जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी ना ये बिल्कुल गायब हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, अब ये क्यों चले गए? क्योंकि फार्मर्स उनकी बातें नहीं मानते थे, जो उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था उन्हें उन ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। मीन्स कि रिवर्टेड मीन्स होता है वापस कर देना, ठीक है, रिटर्न कर देना, ठीक है, टू द पीजेंट्स। उन्होंने जो लैंड थी उनने जो ले रखी थी वो वापस कर दी, ठीक है। और बस गांधी जी की इस मूवमेंट ने जो ये शेयर क्रॉपिंग है, ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग है, ये बिल्कुल डिसअपियर हो गया।